रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन होती है और रेट कांस्टेंट इज गिवन एज 4.606 into 10 raised to the power -3 सेकेंड इनवर्स. टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, वी हैव टू फाइंड टाइम. सो हम टाइम के लिए इक्वेशन लिखेंगे 2.303 upon t log initial upon final concentration to reduce 2 gram. That means initial concentration is given as 2 gram to this much gram. That means final concentration is given as 0.2. Let's put it here. 2.303 upon time is 4.606 into 10 raised to the power -3. Log initial concentration is 2 whereas final is 0.2. 0.2 tens are, log 10 is 1. This is 2, 1 upon 2. ये माइनस में इसको ऊपर भेज देंगे, इसकी पावर प्लस में आ जाएगी. 1 upon 2 is 0.5 into 10 raised to the power 3. So this will be 500 which is given in option C. Rate constant for first order reaction is K. Time required for completion of 99% of the reaction. 99% reaction हो गई है. So let us assume कि starting में initial concentration was 100 gram and 99% हो गई है. That means 99 gram of it has reacted. So final concentration will be 100 minus 99 which is 1 gram. Putting this here we will be getting 2.303 upon K. Log of initial concentration was 100 and final is 1. Log this is log 100. Log 100 को we can write it as like this. Log 10 raised to the power 2. 2 आगे आ जाएगा. 2 into 2.3 is 4.606 upon K और log 10 is 1. You very well know log A raised to the power B is B log A. वही वाला यूज किया है. तो कौन से वाला ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन D will be the right answer to this. First order reaction has a rate constant K is equal to 2.303 into 10 raised to the power -3 and at a time required for 40 gram. That means initial concentration is 40 gram to reduce to 10 gram. Final concentration is 10 gram. Putting this here, so time will be 2.303 upon 2.303 into 10 raised to the power -3. Log of initial concentration is 40. Final is 10. 10 से 10 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा. दिस इज 10 raised to the power 3 और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 2. 2 आगे आएगा और 10 raised to the power 3. log 2 की वैल्यू कितनी दी है? 0.3. 0.6 के करीब आ रही है वैल्यू. 0.6 into 10 raised to the power 3. 3 zeros आगे चलेंगे. 600 which is given in option D. So option D will be the right answer. अप्रोक्सीमेट किया है बस इसकी वैल्यू को. करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन टर्म पे. वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी. हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ 1 अपॉन के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. अब देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में दिया है रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. नो. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकंड में दिया है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0. यस, बी वाले में आधा सही, आधा और पढ़ लेते हैं. हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन A0. नो, दिस डिपेंड्स ऑन A0. हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड, डज लिखा है ना. यस, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस. First order reaction can be catalyzed. Both reactions can be catalyzed. Rate of first order reaction does not depend on reactant concentration. No. D and C and A are incorrect. B is correct. When initial concentration of reactant is doubled, that means A0 की वैल्यू चेंज होकर A0 डैश अब ट्वाइस ऑफ A0 हो गया है. हाफ लाइफ पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो न्यू हाफ लाइफ पीरियड T हाफ डैश कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ A0 अपॉन 2K. ट्वाइस ऑफ A0 अपॉन 2K की जगह क्या लिख सकते हैं? T हाफ पुराना वाला. दैट मीन्स हाफ लाइफ ऑल्सो गेट्स डबल्ड विच इज गिवन इन ऑप्शन बी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्पेसिफिक रिएक्शन रेट K is equal to 10 raised to power -2. How much time will it take for 20 gram? That means initial concentration is given as 20 gram to reduce to final concentration is given as 5 gram. Let's put it here. यहाँ पे K आएगा, सॉरी, ये फर्स्ट लॉ का रेट एक्सप्रेशन है. K की वैल्यू कितनी दी है? 10 raised to power -2. लॉग ऑफ इनिशियल कितना है? 20 और फाइनल कितना है? 5. 5 4 ज़ा 20. ये ऊपर चला जाएगा. 2.303 पावर प्लस में हो जाएगी 10 raised to the power 2. लॉग 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to power 2. 2 जो है आगे आएगा. 2 3 ज़ा 6, 0 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 इंटू 10 raised to the power 2. लॉग 2 कितना होता है? 0.3. इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 6 ज़ा 80. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13818 आंसर आएगा. 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगेगा. मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 2 है. ये पावर प्लस में तो 2 zeros आगे शिफ्ट हो जाएंगे. आंसर आ जाएगा 138.18 सेकेंड विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. Rate of first order reaction is 0.04 mole per liter per second at time interval 10 second and 0.03 mole per liter per second at time 20 second. K की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है. So K is 2.333 upon time interval log rate 1 upon rate 2. Why? Because rate is directly proportional to the concentration of reactant. So हम rate
भी लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन. सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, 20 माइनस 10 विच इज 10. लॉग ऑफ रेट 1 कितना दिया है 0.04 और रेट 2 कितना दिया है 0.03. 20 माइनस 10 इज 10. 10 के साथ डिवाइड करेंगे, एक पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा, 0.2303 और यहाँ पर क्या आएगा log 4/3. अगर इसको सॉल्व करें तो लॉग की वैल्यूज कैसे लिख सकते हैं. log 4/3 दैट मीन्स log 4 माइनस log 3. log 4 होता है 0.6, log 3 होता है 0.47. इसको सॉल्व करेंगे कि a की वैल्यू आ गई 0.029. नाउ वी हैव टू फाइंड टी हाफ. टी हाफ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के. 0.693 अपॉन कितना आ रहा है 0.029. 3 पॉइंट दोनों के हटा दो. 693 अपॉन 29. इसको सॉल्व करेंगे तो 23.89 के करीब आ रहा है 24 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड. सो टी हाफ जो होता है वो ए नॉट पे डिपेंड करता है 1 माइनस एन वेयर एन इज द ऑर्डर. सो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा. कब डिपेंड नहीं करेगा व्हेन दिस पावर इज 0. सो 1 माइनस कितना 0 होता है 1 माइनस 1 इज 0. जब एन इज इक्वल टू 1 होगा उस टाइम पे टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड यू माइट हैव स्टडीड टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693 अपॉन के. सो यहाँ पे ए नॉट का कोई रोल नहीं है. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Reaction is 50% complete, that means T half की वैल्यू दी है 2 hours and 75% complete, that means 3/4 की वैल्यू दी है 4 hours. तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पर ये पॉसिबल है. एक तो हमने रिएक्शन पढ़ी थी जहां पे T हाफ जो T 3/4 जो होता है वो कितना था 3/2 था T हाफ का. और दूसरी हमने रिएक्शंस पढ़ी है फर्स्ट ऑर्डर की या जीरो ऑर्डर की जिसमें ऐसा होता है. ये हमने डिराइव भी किया था. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा होता है कि T75 इज ट्वाइस ऑफ T50. फिर T75 मतलब 25 इंक्रीज किया ना, फिर 25 का हाफ 12.5 और इंक्रीज करो तो 3 टाइम्स हो जाएगा. 12.5 का हाफ 6 और इंक्रीज करो तो 4 हो जाएगा. ऐसे करके आगे चलती है साइकिल. दैट मीन्स T75 इज ट्वाइस ऑफ 50 T50 व्हेन द ऑर्डर इज 1. सो दिस रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. और अगर 3/4 ऑफ T हाफ दिया होता तब जीरो ऑर्डर की होती. सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. The half-life of a certain enzyme catalyzed reaction is given as 138 seconds. Time required for the substance to fall from A naught is given as 1.28 milligram per liter and final concentration is given as 0.04. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि A naught को A के साथ डिवाइड कर दो. अगर हाफ लाइव्स गिवन है 2 raised to the power n. 1 हाफ लाइफ में ऐसे होता है हाफ हो जाता है ये, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 raised to power 1 आएगा. 2 हाफ लाइव्स होंगी तो n की वैल्यू आती रहेगी उसके अकॉर्डिंगली. A naught कितना दिया है 1.28, ये दिया 0.04 और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 3 12 4 2 32 आ जाएगा ये. और ये दिया 2 raised to power n. दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई 5. सो दिस रिएक्शन रिक्वायर्स 5 हाफ लाइव्स. अब हमें एक लाइफ हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी दी है 138. तो टाइम फॉर 1 हाफ लाइफ इज 138. तो 5 हाफ लाइव्स के लिए कितना हो जाएगा 138 इंटू 5. 5 8 40, 5 3 15, 19, 5 1 5 और 6 690 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. सो सी विल बी द राइट आंसर टू दिस. Half life of a first order reaction, half life is given as 1386 seconds and specific rate constant, that means k की value we need to find out. We already know the relation of half life in first order reaction 693 upon k. Now k की value not given, 0.693 upon t half दिया है 1386. If we divide this we'll get 0.0005. अब यहाँ पे 5 और 0.5 की टर्म्स में दिए. 0.5 की टर्म्स में लिखेंगे तो हमें कितने स्टेप्स आगे चलने 1 2 3. सो दिस विल बी 10 raised to the power -3. और अगर 4 स्टेप्स आगे चलेंगे तो 10 raised to the power -4. तो कौन सा ऑप्शन दिया 0.5 into 10 raised to the power -3. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 minutes. दैट मीन्स अगर हम A naught 100 ग्राम ले लें तो 60% ऑफ इट हैज रिएक्टेड. दैट मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन इज 40 ग्राम. सो 50% वुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मच मिनट. वी हैव टू फाइंड आउट T हाफ. सो यहाँ पे पुट कर देते हैं. यहाँ से हमें K निकलेगा 2.303 अपॉन मिनट्स कितने लग रहे हैं 60 minutes. 60 minutes लिख लेते हैं यहाँ पे. लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100, फाइनल इज 40. 10 से 10 इज कैंसल. 2 5 10, 2 2 4. नाउ अगर इसको सॉल्व करें सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे log 5/2. दैट मीन्स log 5 माइनस log 2. log 5 इज 0.6 एंड log 2 इज 0.3. दोनों को माइनस कर लिया. आंसर है 0.0148. अप्रोक्सीमेट के लिए 0.015. अब टी हाफ पूछा है. वी वेरी वेल नो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. दैट मीन्स 0.693 अपॉन 0.015. 3 पॉइंट हटा देते. 693 को डिवाइड कर लेते 15 के साथ. वील गेट द
ये आ रहा है लगभग 46.2, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बिकॉज हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट किया था ना. सो आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, 45 मिनट. First order reaction A gives B, K is rate constant and initial concentration is 0.5 mole. Then the half life is 0.5 molar. Half life कितना होगा? You very well know half life for first order reaction is independent of rate constant, sorry not rate constant but independent of initial concentration. So half life कितना होता था? 0.693 upon K ऐसे होता था. लेकिन अगर हम इसको डेराइव करें ना तो उस केस में वैल्यू कितनी आती थी? log 2 upon K. अगर मैं आपको डेराइव करके दिखाऊं if we are having time. फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आई विल गिव यू द होल डेरिवेशन. ए गिव्स बी एंड के इज रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ इज, हाफ लाइफ पहले टाइम लिख लेते हैं. टाइम कितना होता है? 2.303 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपॉन के, log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन. सिंस वी आर आस्क्ड द हाफ लाइफ, दैट मीन्स जो भी कंसंट्रेशन है वो इनिशियल वाली का कितना हो जाएगी? हाफ, ए नॉट अपॉन 2. सो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करें, टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के, log ऑफ ए नॉट की जगह ए नॉट ही लिखेंगे, नीचे क्या है? ए नॉट अपॉन 2. ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे क्या बच गया? log 2. log 2 कितना होता है? 0.3. सो 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 3 9, 0 3 3 9, 3 2 6, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगेगा 0.69 अपॉन के. इसको आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा ना, 0.693 अपॉन के, वही है ये. तो हमने इसको यहां से डिराइव किया. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल log 2 अपॉन के, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives B, reaction rate is 2 into 10 raised to power -5 mole per liter per second and concentration of A naught is 0.01 molar. We have to find out half life. सो यहाँ पे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करेंगे. रेट इज इक्वल टू कितना होता है? रेट कांस्टेंट. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है. अब यहाँ से के निकालना है, तभी जाके टी हाफ में पुट करेंगे रेट अपॉन ए नॉट. सो रेट कितना दिया है? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5. इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर -2. बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस इज +2, प्लस माइनस इज माइनस, 5 में से 2 निकाले 3, साइन लगेगा बढ़ेगा -3. के की यूनिट्स भी आ गई. अब टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है? 0.693 अपॉन के. के कितना है? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3. यहाँ पे डिवाइड है, इसके ऊपर भेज दो तो एक इसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना इसका साइन, 10 रेज़ टू द पावर 3. 2 3 6, 2 4 8, 9, 2 6 12, 5. 3 यहाँ पे क्या है? 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाना है ना, 1 2 3 सॉरी 3 यहाँ पे पॉइंट लगाना है. 2 3 6 बोला था ना. सो आंसर कितना है? 0.3465 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3. 3 पॉइंट्स आगे करो, 3 4 6 विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. अप्रॉक्सीमेट किया है.